जय सच्चिदानंद। हरि ओ जी दादाजी हरे हो जी दादाजी તમારા વિના કાંઈ ગોઠતું નથી. हमारा ક્યાંય ગોઠતું નથી. હરે ઓ જી પ્યારાજી, हरे जी प्याराजी, सहारा विना बीजो गतो નથી. सहारा વિના બીજ ઉગતું નથી. हरे ओ जी प्यारा, हरे ओ जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी તમારા વિના ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. जगत कुसंगे जगो, जगत कुसंगे जगो केवल सत्संगे जसो, केवल सत्संगे जसो दादाजी नो हसतो, दादाजी नो हस्तु हस्तमुख તમને દર્શન થાતા સો, તમને દર્શન થાતા સુખ. हीरा मोती महाराजी हीरा मोती महाराजी समृद्ध सतिया वीणा નથી. समृद्ध सतिया वीणा दलतो નથી. हरे ओ जी दादाजी, हरे हो हो जी जी दादाजी दादाजी તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લોકો લાગે, ઘરમાં લોકો લાગે સત્સંગ વિના સૂનો લાગે, સત્સંગ વિના સોનો લાગે. દીર્ઘો દિવસ રાત લાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ વાગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો રોગો અતિક્રમણાજી આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતો નથી. આતમ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હરે ઓજી દાદાજી, હરે હોજી દાદાજી હરે ઓજી પ્યારાજી, હરે હોજી પ્યારાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand. Shreya, go out and come back if your problem. Okay. Okay. Now, આપણે 9 કલમો
Hitaxiba, number 1. Rejoin. Shreya, rejoin. Go out and come back. Rejoin. Zoom. Exit and get in again. Okay. We Hitaxiba, can't number hear 1. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યેના અનુમોદય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. This is a Kushi. માત્ર પણ પરમાણ ન દુભાવાય કે દુભવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ન દુભે એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Charisma. હા, જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી યા આચાર્યનો અવનવાદ अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आपो. Monica Didi. दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય, કરતા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Keith, number 5. હા, જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેવધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Monica, number 6. હા, હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ યા નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી दोषों, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए, कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Shreya, number 7. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્ત પણ ન કરાવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાવી પરમ શક્તિ આપો. Number 8, Tears. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેવધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ કર પરોક્ષ જીવંત કર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Divya, number 9. દિવ્યા નંબર 9. હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન મને દગત કામ કરવાની નિમિત્તે બનવાનો પરમ શક્તિ આપો. Okay, very good. Okay. Shailesh Dada, please 3 mantra bulaiye. નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાનમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાનમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો ઉવત્યાણમ નમો લોય સૌ સાહુનમ નમો લોય સૌવસા એસો પંચ નમુકારો એસો પંચ નમુકારો સૌ પાવપણાસનો સૌ પાવપણાસન મંગલાનંચ સૌવે સિમ મંગલા સૌવે પડમમ હવૈ મંગલમ પડવમ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ
भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके चिनाय। आप मुझे प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर भी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान ईश्वर का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल करो, यानी कि जीव मात्र की सेवा नहीं करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियरिटी और बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। कैसा रहा आज मम्मी पापा के साथ? हाँ, आज जैसा था, बस मम्मी के साथ थोड़ी चिकचिक हो गई। चलिए वो बाद में करेंगे। ओके फिर जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आता है उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरी पढ़ाई मुझे पहले सही ढंग से हो और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसे आप कर सकते हैं। मैं जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हमने आपका बच्चे। हम हम हैं हैं आपके बच्चे। दिल के है सच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके ओके गुजराती में 3 सेपरेशन चिनाय। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. वेरी गुड। अव्यय हिंदी में आ गया? हाँ। हाँ बोलो। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप जुदा हो, अव्यय जुदा है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, अव्यय रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, अव्यय टेम्पररी है। जय जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद। सो कल का दिन किसको मालूम है क्या था? कल जन्माष्टमी थी। ओह ओके, हमको मालूम नहीं था। जन्माष्टमी का मीनिंग क्या होता है? किसको यानी कि मालूम है? जिस दिन हाँ यानी कि जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अच्छा, तो आपको आपको क्या फायदा लगता है सेलिब्रेशन कर से? और ऐसा बाद में बताना। आपने क्या किया कल? सारा दिन छुट्टी थी ना? हमने कल सुबह को कृष्ण भगवान की आरती की थी। आरती की थी। और शिनाय? और हमने भी सुबह में ही आरती की थी और प्रेयर भी की थी साथ में। श्रेया? हम लपका मन गए थे। तो क्या हो गया? लखनऊ क्या किया आपने? कमल में आरती की थी। आरती की थी। अव्यय? हमने खाली मंदिर गए और दर्शन किए। ओके,
तो ये जन्माष्टमी क्यों आप सेलिब्रेट करता है? आपको क्या फायदा होता है कि क्या आपने प्रेयर किसी ने किया था? कृष्ण भगवान को किसी ने प्रेयर किया था? मोनिका क्या किया आपने? मैं ये प्रेयर कि मैं मम्मी पापा के साथ बिल्कुल गुस्सा ना करूं, उनके साथ लघुता में बिल्कुल। जोर से बोलो, ये अब वापिस बोलो। हाँ, मैंने ये प्रेयर किया था कि मैं अपनी मम्मी पापा के साथ गुस्सा बिल्कुल ना करूं और उनके साथ लघुत्तम में रहूं व्यवहार। ओ आपका ओ अच्छा वही चल रहा है, वेरी गुड, ओके। तो हाँ, दूसरा किसी ने प्रेयर किया था? नहीं किया था। शैलेश दादा, हाँ जी। जन्माष्टमी का क्या सिग्निफिकेंस होता है और क्या प्रेयर करना मांगता है हमने? ये मोनिका ने तो मांगो तो एवरी टाइम मांगती है कि मम्मी के पापा से अच्छा हुआ, वो बाद में बात करके क्या हुआ। बट ये जन्माष्टमी क्या है और अपने लिए क्या फायदा हो और क्या करना मांगता है, प्रेयर कैसे करना मांगता है कृष्ण भगवान को? देखो, कृष्ण भगवान ये काल के अंतिम वासुदेव, सबके प्यारे वासुदेव, जो 9 वासुदेव होते हैं एक टाइम साइकिल में, उसमें कृष्ण भगवान अंतिम वासुदेव और अगली 24 में 12वें तीर्थंकर भी हैं। तो आत्म योगेश्वर के स्वरूप में वो आए और व्यवहार और आत्मा दोनों का बड़ा अच्छा संतुलन करके उन्होंने पूरा जीवन उदाहरण स्वरूप जिया था। ऐसा भी कहते हैं कि कृष्ण भगवान के जीवन में जन्म से ही जो मुसीबतें थी, मगर कभी वो नेगेटिव नहीं हुए, हमेशा पॉजिटिव ही रहे, हंसते हंसते और व्यवहार और निश्चय दोनों निभाया। मैंने व्यवहार और आत्मा की दोनों की बात बहुत अच्छे ढंग से निभाई और अच्छा बोध भी दिया। तो ऐसे बड़े पुरुष जो होते हैं उनका जन्मदिन जो मनाया जाता है, और कृष्ण भगवान का जन्मदिन श्रावण वद अष्टम आठम यानी अष्टमी को होता है, तो जन्माष्टमी बोला गया। अभी जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, तो बोले उस प्रसंग से हम कृष्ण भगवान को याद करके उनकी पूजा भक्ति आरती विधि करते हैं। फायदा क्या होता है? पहला फायदा ये होता है कि व्यवहार में हमारा मन वाणी काया जो होता है उसके परमाणु परिवर्तित हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, शुद्धि को पाते हैं। और जो और समझ जिनके पास दृष्टि है, हम महात्माओं के पास, सत्संग वाले के पास दृष्टि भी है कि भाई जो दृष्टि, 2 दृष्टि से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को देखना सिखाया था, तो महात्माओं के पास वो 2 दृष्टि है कि भाई बाहर की दृष्टि से वसुदेव के पुत्र वासुदेव जो कृष्ण जो वासुदेव थे, और अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख स्वरूप, अविनाशी ज्ञान स्वरूप कृष्ण भगवान थे। तो वो दृष्टि के साथ जब हम सेलिब्रेशन करेंगे तो हमारा खुद का भी उत्कर्ष व्यवहार और निश्चय में हो सकता है। प्रार्थना क्या करनी चाहिए? प्रार्थना दो हो सकती है हमारी, अलग, सबकी अलग अलग भी हो सकती है, मगर मुख्य तौर पे 2 प्रार्थना है कि कर्मों को क्रुश करके, मैंने कर्मों को खपा के वो खुद आत्म योगेश्वर बने, आत्म अनुभवी, उनके पास शायद समचित की स्थिति थी उनके अंदर की। तो हम भी कृष्ण में बोलो, दादा भगवान बोलो, जो भी बोलो, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई मैं भी ये सही समझ के ज्ञान के उजाले में ये नामधारी के जो गलतियां रूपी कर्म है उसको निपटारा करके अंदर के जो कृष्ण भगवान है, मेरे रियल स्वरूप शुद्धात्मा भगवान है, वो पूरे प्रकट हो जाए। एक ये प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना ये हो सकती है कि हे कृष्ण भगवान, हे सभी देवी देवताओं, ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए आप सहायता करना, सबको सुख और शांति हो, सबको अपने सही सुख का, अपना सनातन सुख का, मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो, ऐसे ये दादाई कल्याण यज्ञ में आप सब सहायता करें। हमारी तो ये 2 मुख्य प्रार्थना
हैं, फिर अपने अपने हिसाब से सब प्रार्थना कर सकते हैं। मगर चीज ये है कि जिनकी भक्त सेलिब्रेशन का अर्थ इतना ही है कि उनकी दशा को, उन्होंने जो अचीवमेंट्स किया रिलेटिव में और रियल में, उनको हम समझे और समझ करके करें तो हमारा भी ऐसा फायदा होगा। कृष्ण भगवान ने खुद ने गीता में बताया था कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। उसमें जो ज्ञानी भक्त, मैंने जो समझ करके भक्ति करता है, वो सबसे ऊंचा है। जय सच्चिदानंद। ऐसे मालूम पड़ गया सबको? तो जिसने सोते पहले वो जो आपके जो प्रार्थना करने है, प्रेयर करने का ओके, करके सो जाने का। ओके मोनिका, मोनिका यू प्रॉब्लम इंटरनेट? मोनिका, हाँ ओके हाँ नो इंटरनेट। प्रॉब्लम। ओके, तो आप क्या हुआ था, बातें करो शैलेश दादा के साथ। हाँ वो आज जब मैं अपनी नानी के साथ फोन में बात कर रही थी तो नानी ने पूछा मम्मी क्या कर रही है, तो मैंने उनके साथ मम्मी की शिकायत की तो मम्मी नाराज हो गई। मम्मी के साथ का इटरनल प्रॉब्लम चल रहा है क्या? मम्मी तो सबसे ज्यादा देखभाल आपकी मम्मी करती है आपके लिए, सबसे ज्यादा भार वो झेलती है, वो प्रेम की मूर्ति है आपके लिए। तो आपको तो मैत्री भाव होना है, मम्मी से शिकायत क्यों करनी पड़े। और यदि किसी की शिकायत, किसी से आपको कुछ वो है, तो उनको सीधा जाके बोलना है कि मम्मी मम्मी मुझे ये पसंद है, या तो ऐसा करें। तो आप दादी को नानी को शिकायत, या किसी भी व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से शिकायत करना, वो तो ठीक बात तो नहीं मानी जाती है। हाँ? और शिकायत करनी ही क्यों पड़े? जो आपके लिए इतना प्रेम दर्शाती है, जो सब कुछ है, माता पिता, और उसमें भी मदर फर्स्ट। तो कोई बड़े पुरुषों ने मम्मी के साथ शिकायत का तो सवाल ही नहीं उठता, उनका अभिनय भी नहीं किया। वो दादा भगवान हो कि महावीर प्रभु हो। आपको महावीर प्रभु की बात पता होगी ना मोनिका, की नहीं है? हाँ महावीर कहानी पता है। पता है? क्या पता है? नहीं वो अपनी मम्मी पापा पर बहुत विनय करते हैं। हाँ, वो गर्भ में थे तब वो सोचते थे कि मेरे हलन चलन से मेरी मम्मी को तकलीफ न हो, तो उन्होंने अपना हिलना बंद कर दिया। तो हिलना बंद कर दिया तो माता को चिंता होने लगी कि मेरे अंदर के गर्भों को क्या हुआ। वो भगवान तो ज्ञान वाले थे, जाना। तो फिर धीरे से हलन चलन शुरू किया। तो उन्होंने गर्भ में से ही सब, उनकी चेष्टा ऐसी थी कि मेरे माता को मुझसे तनिक भी तकलीफ तो ना हो, उनका तनिक भी अभिनय ना हो। तो ऐसे पूरे विनय के साथ रहते। तो उन्होंने क्या समझा होगा, क्या फायदा हुआ होगा महावीर प्रभु को इससे? उन्हीं हुआ पर होगा तो फायदा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा फायदा तो। हाँ, तो फिर आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मैं बस ऐसे मजाक के लिए कर रही थी, मम्मी ने थोड़ा सीरियस मजाक ले। नहीं, वो समझ गया, मजाक आप कर सकते हैं, बट मजाक मम्मी के साथ सीधा करिए ना। मम्मी को दुख पहुंचे ऐसा मजाक मत करिए। मजाक ऐसा करिए कि मम्मी को उस आपका प्रेम दिखे उसमें। हाँ? हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक, आपको कैसे फिर चल रहा है फिर मम्मी के साथ? फिर मम्मी से क्लैरिफिकेशन कर लिया कि नहीं? हाँ कर लिया था। खुश कर दिया कि नहीं? खुश तो नहीं हुए पर ले, तो खुश कर देना मांगता है। गली, दादाजी बोलते थे गली पची करके भी खुश कर दो, हाँ गले लग के भी खुश कर दो, प्रेम दिखा के दर्शा के खुश कर दो, कोई भी रास्ते से खुश कर दो। शैलेश आनंद जी लेकिन वो मम्मी के पास मेरी गलती हुई करके नहीं गई, मैं सही हूँ करके गई। हाँ, वो तो सबसे दूसरी गलती हुई। वो दूसरी गलती हुई तो फिर मम्मी कैसे खुश होगी? हाँ हाँ, अपनी गलती हो गई। गलती मैंने आपको, आप बता सकते हैं कि भाई मम्मी मुझसे, मेरे से आपको दुख पहुंचा तो मैं माफी चाहती हूँ, मगर मेरा
हेतु तो मजाक का था यदि आपको कहना है, मगर पहले तो किसी को अपने से दुख पहुंचा तो अपने को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। हाँ सही गलत की बात ही नहीं आती है यहाँ पर, बाद में है बात। डॉक्टर साहब हम ऐसे भी रख सकते हैं ना कि डैड एंड मॉम दे आर ऑलवेज राइट। हाँ वो तो बरोबर है, वो विनयी धर्म है, प्रेम से बात करना है तो करिए, मगर विनयी धर्म ये कहता है कि अपने से उनको दुख नहीं पहुंचाना। प्रेम से बात करो कोई बात नहीं, मगर ये ध्यान में रखें। हाँ बराबर। हिताक्षी बा, आपको कैसे चलता है मम्मी के साथ? मेरे मम्मी के साथ अच्छा चलता है, पर आज थोड़ा सा हम डूब गया था। क्या हो गया था? हाँ, कल रात को मैं देर से सो गई थी ना, तो आज सुबह को मुझे नींद बहुत आ रही थी। मम्मी ने मुझे बोला कि तू उठ ही जा। उसमें थोड़ा सा मम्मी का हम डूब गया था। कितने बजे उठना था? 6 बजे के ऊपर मैं 7 बजे को उठी थी। लेकिन सोए कब थे? 11 और 11:15 का बीच में। मैं तो 1:30 बजे 2 बजे सोने के बाद 5 बजे उठ गया था। मुझे तो पीजी में जाने का था। बोलो। हम्म, अभी दोपहर में तो सोते हैं ना आप थोड़ा। नहीं, अभी नहीं सोई थी। ऐसा होता है तो सुबह का टाइम, क्योंकि मम्मी का काम होता है ना सुबह में सब, वो पीछे चले जाता है तो उनका, तो वो टाइम संभाल लेने का। नहीं कर सकते ऐसा? कर सकते हैं ना। हाँ। ओके। आरुष, आपको कैसे चल रहा है मम्मी के साथ? अच्छा चल रहा। अच्छा यानी मम्मी की सब बात मानता। वाह। 100%? किधर है मम्मी? आप पास में है, पूछो उसको। बाहर गई है। बाहर गई है, ओके। अव्यय, आप तो नहीं सुनते हैं ना मम्मी? टीवी टीवी ना बोलता है तो भी देखते हैं ना। अव्यय, अव्यय, ओ वीडियो बंद करो। ओके। श्रेया, आपको कैसे चलता है? Everybody's problem today. Connection, Deepakan ji. I don't Shreya, know. It's fine. सुनाई दे रहा है? कैसा है मम्मी के साथ, कैसा चल रहा है आपको? श्रेया, नहीं सुनाई देता? Okay. आए वापस। I think there's a problem, Deepakan ji. No, we can hear. No, she's not saying. She's not able to say. Shriya, क्या हो गया? She's supposed to sing also Pad. अभी सुनाई दे रहा है? बोलो। हाँ। नहीं, आज अच्छा रहा था मम्मी के साथ। वो नॉर्मली अच्छा रहता है कि नहीं रहता है? कि कभी कभी गुस्से हो जाते हैं मम्मी पे? कभी कभी गुस्से हो जाते हैं। शैलेश दादा, कभी कभी गुस्से हो जाता है। शैलेश दादा, आपको आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि मम्मी पर आप कभी गुस्सा हुए। हाँ वो तो ढूंढना पड़ेगा। मम्मी तो बेस्ट फ्रेंड होनी है, आप फ्रेंड नहीं पूज्य भाव पर मैंने। ये क्या है दीपक आनंद जी, उन सबके लिए सहज है ना, मम्मी मिली है तो कीमत नहीं है। थोड़े दिन बाहर चली जाए और किसी को मम्मी ना हो, उसको पूछो क्या होता है। कोई बात नहीं, चलो। ओके, वेरी गुड। ओके, अभी